अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, जो प्रैक्टिकल टॉपिक 11th अकाउंट्स में पहले आता है। दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर ऑफ 11th अकाउंट्स। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके नाम से हमें पता चलता है कि यहाँ के वर्ड है इक्वेशन, जो हमने 9th 10th में पढ़ा है। इक्वेशन मीन्स व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू ईच अदर। सेम इज द केस विद दिस। यहाँ पे भी कुछ टर्म्स हैं हमारे पास जो एक दूसरे को बराबर, जो इक्वेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर एसेट्स इज इक्वल टू liabilities प्लस कैपिटल। यानी यहाँ पे इसी तरह है, जो एसेट्स हैं ये बराबर होते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन हियर? अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ टूल with which the equality of debits and creditors can be established. And an accounting equation is a tool with which equality of debitors and creditors can be established. Accounting equation is also called balance sheet equation. So we write it. Accounting equation is also called balance sheet equation. Why? Because all the components, all the items that are shown in the balance sheet are also depicted in the accounting equation. In balance sheet we have assets and the liabilities. These two terms are called liabilities in business, and these assets are also called these liabilities plus capital in balance sheet. So that is why accounting equation is called balance sheet equation. It has two sides. One is left hand side and the another is right hand side. In the left hand side, assets are written, and on the other side, right hand side, liabilities and capital are written. All the items components or items of balance sheet are depicted in accounting equation. जो भी चीजें बैलेंस शीट में आते हैं वो सारी चीजें अकाउंट इक्वेशन में भी आते हैं. इट हैज टू साइड्स दैट आई टोल्ड यू. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. In left side, assets are written, and in the right side, liabilities and capital are written. Now, we understood here accounting equation के दो साइड्स हैं, जिसमें लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है. Here I told you it's a tool with which the equality of debits and creditors can be established. एक ऐसा टूल है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
which is used to equalize, which shows us the equality between debitors and creditors. What are the debits and creditors here? The debits and creditors, when the business is running, at the time the assets, these are called debit balances, and the liabilities and capital that are in hand, that are called credit balances. The assets in hand are called debit balances, and their liabilities and capital are also called credit balances. Now, here we have assets and liabilities plus capital. These terms are always equal. Assets are always equal to liabilities and capital. Now, to make it clear, this concept now, the accounting equation is similar to a measuring scale, a measuring instrument that is called balance. The balance we have seen, it has two dishes which are always equal, which are always balanced. These both dishes are always equal. When we put something on this side will go up and it became unbalanced. It will become unbalanced. Now, to make it balanced, either we have to remove the item back, or we have to put the same weight on this side. Similar is the case with the accounting equation. These are assets, one side, and the other side have liabilities plus capital. Similarly, if we put something on this side will become unbalanced. For making the balance, for creating the balance between these two items, we have to put on the other side same weight, or either we have to remove that we have put here in this side. It has two sides, that is asset side and the liabilities and capital side. What are these liabilities and assets? We have learned in accounting terminology, assets are the properties and possessions that a business owns, that a business holds, and liabilities and capital, that are obligations, claims on these assets, on this property. These claims may be of insiders and as well as of outsiders. When a person starts the business, at the time, in case of insufficient amount available to the businessman, he collects some money on loan. At the time, this loan amount for maintaining the business, for starting the business, for running the business, that is called liability. Here we have two types of claims on the assets, that are liabilities and capital. The liabilities or financial obligations or the claims of the business on the assets that belongs to outsiders of the business, and the capital is also a claim, is also a financial obligation on business, on the assets of the business, but that belongs to insiders of the business, owners of the business, who maintains the business, who manages the business, owners of the business, proprietors of the business. That is, in accounting equation, this property side is always equal to liability side and the capital side. Suppose, now we take some, first this asset side, this is called property side, possession side, and the other side, that is called equity side. Equity side, insiders equities and outsiders equities. Insiders equities are called capital, and the outsiders equities are called liabilities. That are the financial obligations of outsiders to the business. Now, why this the capital? Capital is obligation to the business. It's claim on the assets of the business. Now, remember here one thing: when a person starts business, it means he is giving money on credit basis to the business,
after completing the businessman starts, business has to pay this amount back to the person. Business has to pay back which business has received from the proprietor as a capital. This capital becomes obligation. It becomes the amount which is due to the person, which is due to the capital of the which is due to the proprietor of the business, which the business has to pay back to the proprietor. That is why capital became the liability. That is why capital became claim on the assets of the business. And when the business is started, the businessman is treated separate, and the business is treated as separate identity, separate entity in accounting terminology, in accounting system. Business is separate, and the person who started the business, who owns the business, is treated as separate. That is why if these are not treated separately, then there may be difficulty for making the financial statements of the business. Now this equity side is always equal to assets, the properties. Now taking an example to clear this concept. For example, a person A, he wants to start a business. How the accounting equation works. Let us take an example to clear it. Say A is the person who wants to start a business. For the business he needs rupees, suppose 8 lakh rupees. Say he needs 8 lakh. But in his pocket he has only 5 lakh rupees. He wants to start a business. For this he needs rupees 8 lakh. But in his pocket there is only 5 lakh rupees. So how he make the business? What he will do? Now where he got the remaining amount? The 5 lakh in his hand, that is called capital. जो भी उसके हैंड में है, उसके पॉकेट में, उसको कैपिटल कहते हैं. लेकिन जो इसको पेंडिंग है अभी, इसको बिजनेस करने में 8 लाख रुपए की जरूरत है. लेकिन जो बाकी अमाउंट उसको बचता है, जो इसको जरूरत है, वो कहां से लाएगा? वो वही आइदर he collects it from bank or from any other person, his friend, his brother, his any person, to whom he will pay it in later. Suppose 3 lakh rupees he collected from his friend. Friend gave him rupees 3 lakh, but he had to pay this amount back after starting the business. This amount that is to be paid back, that becomes claimed on the business, that becomes obligation on the business, that is called liability. So the amount which he uses from his own pocket, that is called capital, and the amount which he uses from outsiders, which he uses from others, that is called the liability of the liability. So he has collected 8 lakh rupees which he needs for maintaining the business. अब उसके पास 8 लाख रुपया तो आगे, अब क्या करेगा वो 8 लाख? उसको बिजनेस स्टार्ट करनी है. अब उसमें देखेंगे वो कौन सी बिजनेस करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, इसके लिए क्या करना है. अगर वो कोई भी, हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, वो एक छोटी सी दुकान डालना चाहता है. उसके लिए उसको दुकान की जरूरत है, उसको दुकान के में जो जरूरी आइटम्स फर्नीचर है उसकी जरूरत है. इसके अलावा उसको वो चीजों की जरूरत है जो वो बेचेगा, जिससे वो अपनी अर्निंग कमा सकेगा. इसी तरह सपोज here rupees 8 lakh rupees, he will invest this amount. Suppose he purchased building, that is shop, for rupees 3 lakh. For business or making business, he need shop. मान ले कि उसने शॉप खरीदा है 3 लाख रुपये में. अब शॉप के साथ उसको फर्नीचर की जरूरत है.
फर्नीचर सपोज मानी गई कि उसने 10,000 में फर्नीचर या 50,000 में फर्नीचर भी लाया, खरीद लिया, 50,000 का फर्नीचर खरीद लिया। उसके पास 8 लाख रुपए तो आ गए। अब क्या करेगा? उसको दुकान की जरूरत है, उसने दुकान खरीदा जिसमें वो काम करेगा, और इसके बाद उसको फर्नीचर की जरूरत है, फर्नीचर भी खरीद लिया। अब इन दो आइटमों से वो बिजनेस नहीं कर सकता है। क्यों? वो बेचेगा क्या इधर? उसने दुकान खरीदा, फर्नीचर खरीदा, लेकिन अभी वो ऐसा आइटम, वो चीज उसने नहीं खरीदे जिनमें वो काम कर सकेगा, जिनसे वो अपना रोजगार कमा पाएगा। मान ले उसने 1 लाख रुपए में वो माल खरीदा, उसको कहते हैं गुड्स। गुड्स आर द आइटम्स which are purchased for sold in ordinary course of the business in order to earn earnings, in order to earn profits। प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी चीजें बेची जाती है, वही जिनमें बिजनेस रोजमर्रा की जिंदगी गुजारी जाती है, बेचने के लिए बेचते हुए, उन्हीं को हम गुड्स कहते हैं। तो मान ले इसने गुड्स भी खरीदे यहां पे 1 लाख के, टोटल इसके पास रुपीज 8 लाख थे। 8 लाख में से उसने 3 लाख का दुकान खरीदा है, 50,000 का फर्नीचर खरीदा है, और 1 लाख का गुड्स खरीदा है। अब ये बिजनेस करने की काबिल हो गया इधर, वो बिजनेस अब कर सकता है, क्योंकि माल तो उसके पास आ गया, दुकान भी है, फर्नीचर जिसमें बैठेगा, जो काम उसमें आएगा। हाँ, अब देखेंगे इसके पास टोटल 8 लाख रुपीज थे। 8 लाख में से उसने कितना खर्च किया? 4,50,000। अब जो बाकी बचा है उसके पास, वो है 3,50,000, वो है कैश। All these things, building, furniture, goods, cash, these are the properties of the business। जो पैसा उसने खुद का लिया था और दूसरे का लिया था, उधार का लिया था, उसी को इसने खर्च करके वो चीजें लाई जिसमें वो काम कर सकेगा। बिल्डिंग लाई, फर्नीचर लाया, गुड्स लाया, और बाकी जो बचा उसके पास 3,50,000 वो कैश की सूरत में और ये बैंक बैलेंस की सूरत में। ये बन गए बिजनेस की प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं एसेट्स। दीज आर द एसेट्स। ये जो एसेट्स हैं, ये ऑलवेज, दीज आर ऑलवेज इक्वल टू दीज टू आइटम्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये वही पैसा खर्च करेगा जो इसके पास था और जो इसने उधार के लिया था और किसी से मांग के लिया था, जो वापस देना है उसको। तो इसी तरह से अगर हम चेक करेंगे, ये हमेशा इक्वल होगा इन दोनों आइटमों को। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में डाल देंगे, ये हमेशा बराबर निकलेगा। इसी को बोलते हैं, ऐसे ही अकाउंट इक्वेशन काम करते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि एसेट जो है, जो प्रॉपर्टीज बिजनेस की होती है, वो हमेशा होती है लायबिलिटीज और कैपिटल की। और जो बिजनेस की जाती है, या तो अपने पैसों से की जाती है या अपने पैसों के अलावा दूसरे के पैसों से की जाती है। जो दूसरे के पैसे बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं, उनको लायबिलिटीज कहते हैं। जो अपने पैसे इस्तेमाल होते हैं बिजनेस में, इन्वेस्ट होते हैं बिजनेस में, उनको कहते हैं कैपिटल। दैट्स कॉल्ड कैपिटल। ये कैपिटल और लायबिलिटीज, ये मैंने बोलते हैं, ये दोनों कर्जा है बिजनेस को होता है। बिजनेस के लिए ये दोनों कर्जा है, क्योंकि बिजनेस को वापस पे करना है, वापस देना है उस मालिक को भी और उसको भी जिससे उसने उधार के लिए थे। सपोज now taking an example to make the format of accounting equation and to clear the accounting equation. In accounting equation, assets is equal to
लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सपोज हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज ये आपस में कैसे बराबर होते हैं और ये बिजनेस में कैसे काम करते हैं, बिजनेस हाउ इट वर्क्स इन द बिजनेस, हाउ इट इफेक्ट्स द इन बिजनेस, हाउ इट इफेक्ट्स इन बिजनेस। अगर हम देखेंगे और जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं ये डबल एंट्री सिस्टम इसको बोलते हैं, इसमें ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। हाँ, इसका मतलब क्या है, अगर हम दुकान के पास जाएंगे, दुकानदार के पास जाएंगे, हमें पेन खरीदना है, इस पेन खरीदने के लिए हमें दुकानदार को पैसे देने हैं। हमने पेन खरीदा है, पेन लिया, वी टेक द पेन, बट वी गिव द मनी, दैट आर टू एस्पेक्ट्स, एवरी गिवर इज अ टेकर एंड एवरी टेकर इज अ गिवर। इसी तरह when we talk about the debit and credit, these are the account sides of the accounts। जिस तरह हमने इधर देखा ये जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग में जब हम पढ़ेंगे आगे वहां पे भी दो बैलेंसेस, डेबिट आर ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा एसेट्स, दीज आर कॉल्ड डेबिट बैलेंसेस। तो जब एसेट बढ़ते हैं उसको भी हम बोलते हैं डेबिट्स, जब एसेट घटता है बिजनेस में उसको उस वक्त बोलते हैं क्रेडिट्स। इसी तरह लायबिलिटीज और कैपिटल जब ये बढ़ते हैं बिजनेस में तो इनको बोलते हैं क्रेडिट्स, दे आर गोइंग क्रेडिट्स। एंड जब ये घटते हैं, कम हो जाते हैं, देन दे आर कॉल्ड डेबिट्स। एट द टाइम वी कॉल इट दीज आर द डेबिट्स। नाउ सपोज टेकिंग एन एग्जांपल हियर, Shyam started business with cash ₹5। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन लिखी कि श्याम ने बिजनेस स्टार्ट की 5 लाख रुपये से, उसने बिजनेस स्टार्ट की। जब बिजनेस स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, मैंने बोला आपको पहले ही, जब बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है वो इसका मतलब है उसने बिजनेस को उधार में पैसे दिए। He gave money to the business on credit base. That is why they are called liabilities to the business. इसी तरह यहां पे जब बिजनेस ने पैसे पकड़े हैं तो ये जो पैसे उसने पकड़े, that becomes the property of the business. That is cash. Cash is asset. Cash is asset, the possessions of the business. The possessions, it may be tangible, intangible, fixed, current, non-current, etc. Floating, whatever the assets may be. They are always equal to these two terms, liabilities and the capital. Here, when the business is started, at the time the business got cash. So cash is asset. We write here in asset side, first term the cash. Rupees 5 lakh. At the same time, business got liability. That is insider's liability. Not outsider's liability, but the insider's liability. Insider's claim. That is called capital. So we write here in capital rupees 5 lakh. इसका मतलब है बिजनेस को पहले ही कर्जा चढ़ गया है, किसका, जो बिजनेस करने वाला था उसका। कितना, 5 लाख रुपया ना। बिजनेस के पास कितने पैसे आ गए, 5 लाख कैश, और वहां पे भी कर्जा अभी दूसरे का नहीं चढ़ा है तो कर्जा ऐसे ही रहेगा, लायबिलिटी 0। सपोज दूसरा ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे यहाँ पे, पैसे तो उसने लाए, अब क्या करेगा, वो खर्च करेगा, उसको बिजनेस करनी है। ऐसे ही लेंगे कोई एग्जांपल जिसमें वो बिजनेस करेगा, कौन से बिजनेस करेगा, क्या करेगा, तो हम लेंगे ऐसे फिलहाल। सपोज परचेज बिल्डिंग फॉर ₹1 लाख। चलो मान लो उसने 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी है। बिल्डिंग तो 1 लाख में नहीं आ सकती है, आजकल महंगा जमाना है, तो हम लेंगे एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख की बिल्डिंग उसने खरीदी है इन कैश।
ना, पैसों से खरीदी है। तो जब पैसों से खरीदी है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग तो बिजनेस की बन गई है। तो यहां पे एक और आइटम चलेगा एसेट्स में, बिल्डिंग। और बिल्डिंग के कितने में खरीदी है? इसके पास 5 लाख रुपया था पहले, अब बिल्डिंग आ गई है 1 लाख की। ये बिल्डिंग उसने कहां से लाई, पैसे कहां से लाए? पैसे बिजनेस से ही निकाले। बिजनेस में कितने पैसे थे? 5 लाख। अब इसमें से 1 लाख कम हो गया। बिजनेस में पैसों में से 1 लाख कम हो गया, मगर यहाँ पे एसेट और एक प्रॉपर्टी चढ़ गई, दैट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज्ड बट द एसेट्स बट द कैश वाज रिड्यूस्ड। कर्जा तो कुछ नहीं चढ़ गया, जो भी पैसा इस्तेमाल किया वो अपना ही किया, दैट इज कैपिटल। अब बिजनेस के पास क्या है? कैश 4 लाख रुपया है और बिल्डिंग 1 लाख की है। जो कुछ भी है बिजनेसमैन को अपना है, दैट इज कैपिटल इनसाइड और स्क्रैप। अब मान ले उसने फर्नीचर भी खरीदा है, परचेज्ड फर्नीचर इन कैश फॉर ₹50,000। 50 लाख का फर्नीचर उसने खरीद लिया है। सो जब उसने कैश में खरीदा है, यानी परचेज इन कैश, कैश गोज डाउन, कैश गोज रिड्यूस्ड, -50,000. Another item has been increased in the business, that is furniture, that is asset property. So furniture account is to be increased here. फर्नीचर के नीचे हम लिखेंगे 50,000, क्योंकि फर्नीचर 50,000 का है। उसने अपने पैसों से खरीदा है, कर्जा तो अभी कुछ नहीं चढ़ गया, तो कर्जा 0 ही है। सब कुछ बिजनेसमैन को अपना ही है, तो इसलिए कैपिटल बराबर। यहाँ पे 3,50,000 उसको कैश की सूरत में है, 3,50,000 ये इन द शेप ऑफ कैश, एंड बिल्डिंग 1 लाख की है, प्लस फर्नीचर 50,000 का है। 3,50,000 और 50,000 4 लाख, 4 लाख 1 लाख, 5 लाख 5 लाख बराबर, दोनों साइड बराबर आएंगे। हाँ, इधर एक और बात, जो भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, उसके इफेक्ट्स कैसे होते हैं? या तो इससे यहां पर एसेट्स में ही इफेक्ट होगा, या एसेट्स और लायबिलिटीज में भी हो सकता है, या लायबिलिटीज और कैपिटल में भी हो सकता है। एक चीज घटेगा, एक चीज आएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वन गोज डिक्रीजिंग, वन गोज इंक्रीजिंग। इसी तरह यहां पे हम जब बिल्डिंग खरीदी गई तो एक चीज कम हो गया, मगर एक चीज बढ़ गया, वहां पे कोई असर नहीं पड़ा। इसी तरह यहां पे भी फर्नीचर जब खरीदा गया तो उस वक्त कैश कम हो गया, लेकिन फर्नीचर एक और आइटम आ गया, तो उन पे कोई असर नहीं पड़ा। इसी तरह से बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शन या तो एक जगह पे इफेक्ट करेगी, या 2 जगह पे, या 3 जगहों पे इफेक्ट कर सकती है। सपोज टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, परचेज्ड गुड्स इन कैश फॉर ₹50,000। उसने गुड्स भी आप खरीदे हैं 50,000 की, तो कैश कम हो जाएगा, नकद खरीदा है 50,000 कैश में कम, मगर प्रॉपर्टी तो बढ़ गई है। यहाँ पे गुड्स आ गई है, बिजनेस गॉट गुड्स 50,000 की, 50,000। अब बिल्डिंग बिजनेस के पास क्या प्रॉपर्टी है? बिजनेस के पास प्रॉपर्टी किस शेप में है?
इन चीजों के साथ नहीं छेड़ेगा। अब प्रॉपर्टी किस सूरत में है बिजनेस के पास? एक तो है कैश, दूसरा है बिल्डिंग, तीसरा है फर्नीचर, चौथा है गुड्स। हाँ, कैश कितना रहेगा? 3 लाख रुपया, बिल्डिंग 1 लाख रुपया, फर्नीचर 50,000 और गुड्स माल भी 50,000 का है। जो कुछ भी है तो अपना ही है बिजनेसमैन को, कर्जा दूसरे का नहीं है। तो 5 लाख बराबर, ये भी 5 लाख, वो भी 5 लाख, 3, 4 और 5। अब एक और ट्रांजेक्शन लेंगे। सपोज मान लें परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर रुपीज 1 लाख। उसने माल खरीदा है मगर रोहन से। यहाँ पे माल तो खरीदा है लेकिन पैसे उसको नहीं दिए। उसने उधार में माल लिया है। किससे? रोहन से गुड्स उसने लिए हैं लेकिन उसको अभी पैसे नहीं दिए। लेकिन जब रोहन से वो लेंगे क्या माल लिया गया है तो उसको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। आज नहीं देने को तो कल देने पड़ेंगे, लेकिन देने तो देने ही है। जब पैसे देने हैं दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। जो बिजनेस को पैसे देने होते हैं, किसी भी सूरत में देने होते हैं, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे माल तो आ गया, बिजनेस में प्रॉपर्टी तो आ गई, कैश उसके साथ नहीं छेड़छाड़ की गई, बिल्डिंग तो इतनी है, फर्नीचर तो भी इतना है, लेकिन माल तो बढ़ गया 1 लाख का, 1 लाख रुपये का। इसके साथ साथ यहाँ पे कर्जा भी बढ़ गया बिजनेस को, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। इसका मतलब है इसने यहाँ पे माल तो खरीदा है लेकिन अब से अपने पैसों से नहीं बल्कि औरों के पैसों से, जिसको बाद में पैसे वापस देने हैं। दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो अब क्या आ गया हमारे पास? अपने पैसे तो 5 लाख हैं, दैट इज कैपिटल। कर्जा तो चढ़ गया 1 लाख का, बन गया 6 लाख टोटल लायबिलिटीज, इक्विटी साइड। अब यहां पे देखेंगे कैश 3 लाख की सूरत में, बिल्डिंग 1 लाख की शेप में और 50,000 फर्नीचर है। इसके अलावा गुड्स 1,50,000। अगर इनको टोटल करेंगे ये 6 लाख बनेंगे, 3, 4, 5 और 6। अब एक और ट्रांजेक्शन लेंगे। सपोज पे टू रोहन रुपीज 50,000। रोहन को पैसे दिए गए, कितना? 50,000। अब क्या होगा इससे? कैश इसके पास था, कैश कम हो जाएगा क्योंकि रोहन को पैसे देने, उसने उससे माल खरीदा गया था, अब उसको पैसे देने तो 50,000 उसको देने, तो 50,000 कैश से कम हो जाएगा। इससे सिमिलरली रोहन का जो कर्जा था 1 लाख रुपया, अब इसको 50,000 तो दिए, तो वहां पे कितने रह गए? 50,000। तो 50,000 इसको माइनस हो जाएंगे क्योंकि जो दिए हैं। अब क्या रह गया? बाकी चीजों के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं है। अब कैश 2,50,000 है, बिल्डिंग 1 लाख की है, फर्नीचर 50,000 का है और गुड्स 1,50,000। In the 7th, the liability is here only 50,000 now. There was liability 1 lakh, 1 लाख की लाइबिलिटी थी। अब 50,000 उसको दिए गए हैं, वहां पे कर्जा रह गया 50,000 का। जो अपना है वो है कैपिटल, दैट इज 5 लाख।
अब एक और अहम बात, जब बिजनेस से कुछ चीजें अपने लिए इस्तेमाल, जो बिजनेसमैन अपने लिए इस्तेमाल करेगा चीज या कैश, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, कैश ड्राइंग एंड ट्रेड ड्राइंग। जब बिजनेसमैन बिजनेस की चीजें इस्तेमाल करता है घर में पर्सनल यूज के लिए, एट द टाइम दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड ड्राइंग। और जब वो पैसे इस्तेमाल करता है, पैसे लेता है बिजनेस से, फिर घर में इस्तेमाल करता है, अपने लिए करता है, तो उस वक्त उसको बोलते हैं कैश ड्राइंग। जो कैश ड्राइंग है, ये कैश को भी कम करेगा या एसेट्स को भी कम करेगा और कैपिटल को भी कम करेगा। इसी तरह बिजनेस, एक और बात, बिजनेस सर्विसेज देता भी है और कभी कभी लेता भी है, क्योंकि सर्विस लेना तो बिजनेस में जरूरी है। सपोज हम कहेंगे कि जो बिजनेस चल रही थी, इसने सेल्समैन एक रखा था, तो जो सेल्समैन है उसको सैलरी देनी है, क्योंकि उसने काम दिया था, उसने सर्विस दिया था। व्हेन द बिजनेस रिसीव्स सर्विस, फॉर दिस इट हैज टू पे। एट द टाइम दिस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस होती है वो हमेशा कैपिटल को भी कम करते हैं और एसेट्स को भी कम करते हैं। इसी तरह जब बिजनेस किसी को सर्विस देता है, किसी का काम करता है, व्हेन बिजनेस pays service or give a service to any other business, for this it receives money। तो उस वक्त जब बिजनेस किसी का काम करता है तो उस वक्त वो पैसे लेता है उनसे, वो इनकम बनती है बिजनेस के लिए। That is not expense at that time, that becomes income to the business. This income increases the capital as well as the assets as well as the property. Keep remember here. In the same way, अगर बिजनेस को नुकसान हो जाता है, वो नुकसान, दैट इज लॉस कैपिटल को भी कम कर सकता है और एसेट प्रॉपर्टी को भी कम कर सकता है। इसी तरह जो भी फायदा आता है, फायदा कैपिटल को भी बढ़ाएगा और प्रॉपर्टी को भी बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पेड सैलरी टू ए रुपीज 10,000। ए को सैलरी दी गई है, क्योंकि ए सेल्समैन था, उसको बिजनेस ने सैलरी दिया है, कितना 10,000। अब क्या हो जाएगा इससे, उसने कैश लिया है, बिजनेस में कैश कितना था 2,50,000, तो इसमें से 10,000 कम हो जाएंगे जो ए को दिया गया है, क्योंकि ए ने बिजनेस का काम किया है तो इसके लिए उसको सर्विस देना है, उसने सर्विस दी है तो इसके लिए उसको सैलरी देनी ही है, तो कैश कम हो जाएगा। इसके साथ साथ कैपिटल को भी कम होगा 10,000। पर एक्सपेंसेस मैंने पहले ही बोल दिया कि एक्सपेंसेस जो है वो कैपिटल को भी कम करते हैं और एसेट्स को भी कम करते हैं। इस तरह जो भी इनकम्स होती है वो कैपिटल को भी बढ़ाती है, इंक्रीज करते हैं, और एसेट्स को भी, प्रॉपर्टी को भी इंक्रीज करती है। यहां पे जो सैलरी पेड की गई ए को, ए ने काम दिया था, उसने बिजनेस के लिए काम किया था तो उसको देने हैं, उसने फायदा पहुंचाया था बिजनेस को, मगर यहां पे उसको वापस पे करना है। फॉर दिस बिजनेस हैज टू पे। सो अब बिजनेस के पास 2,40,000 रुपये बच तो गए हैं। 1 लाख की बिल्डिंग है, फर्नीचर 50,000 का है और गुड्स 1,50,000, कर्जा तो 50,000 रह गया है, यहाँ पे 4,90,000 कैपिटल। Now another item, बिजनेस रिसीव्स कमीशन। बिजनेस ने किसी का काम किया है तो उसने इस बिजनेस को कमीशन दिया है। सपोज रिसीवर कमीशन ₹10,000। बिजनेस ने किसी का काम किया और उसने कमीशन दे दिया बिजनेस को, कितना 10,000। तो बिजनेस के लिए फायदा बन गया है, दैट इज रेवेन्यू टू द बिजनेस, इनकम टू द बिजनेस।
तो बिजनेस को फायदा हो गया है 10,000 और कैपिटल भी बढ़ेगा। कितना है? 10,000। अब कितना बन गया बिजनेस में? 2,50,000, 1,50,000, 1,50,000 इधर और इधर 50,000 लाइबिलिटी, तो कैपिटल 5 लाख बन गया है। नाउ अगर इसको टोटल करेंगे ये हमेशा उसके बराबर आएगा। 2,50,000 और लाख, 3,50,000, 3,50,000 और 50,000 हो गए 4 लाख, 4 लाख और लाख हो गया 50,000, यानी 4,50,000, 4 लाख और 1,50,000 हो गया 5,50,000 उसके बराबर है। इसी तरह सपोज एक और ट्रांजेक्शन लेंगे यहाँ पे, withdrew ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। बिजनेसमैन को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने बिजनेस में से पैसे लिए हैं। मैंने पहले ही बोला जो अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है वो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग दो तरह की होती है, अगर चीजें इस्तेमाल करेगा तो ट्रेड ड्राइंग बनता है, अगर पैसे इस्तेमाल करेगा बिजनेस के तो वो कैश ड्राइंग बनता है, कैश करेगा इस्तेमाल तो कैश ड्राइंग बनेगा। इस तरह यहाँ पे पॉइंट है कि जो बिजनेसमैन ने अपने लिए बिजनेस से पैसे 10,000 रुपया लिया है, तो इससे क्या हो जाएगा, बिजनेस में जितना जो कैश था 2,50,000, अब इसमें 10,000 कम हो जाएंगे। इसी तरह जो इसके पास बिजनेस के पास कैपिटल था 5 लाख, इसमें भी 10,000 कम हो जाएगा, बाकी सेम। बिल्डिंग 1 लाख की, फर्नीचर 50,000, गुड्स 1,50,000, बाकी कर्जा तो 50,000 है, बाकी सेम। तो अब कैश की बिजनेस के पास 2,40,000 रुपया है, बिल्डिंग 1 लाख की है और फर्नीचर 50,000 का है, गुड्स 1,50,000। इसी तरह कर्जा तो बढ़ गया है 50,000 का लायबिलिटी और 4,90,000 कैपिटल। Now we have learned how the account equation affects, how the account equation remains same after doing many transactions in the business. जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे लेकिन ये दो हमेशा सेम रहेंगे। How? मैंने एक और पॉइंट बोला था, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट स्टेप होता है वो हमें बैलेंस शीट बना के देता है। बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो इसमें हम, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है which shows the position of assets and liabilities. Financial position means assets and liabilities of the business. So we have here all the things. बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पे, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट एन अकाउंट। पहले लायबिलिटीज लिखी जाती है और इस साइड में कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़ा उल्टा है।
इस तरह भी लिख सकते हैं लाइबिलिटीज। यहाँ पे 50,000 है और कैपिटल 4,90,000। इसी तरह सॉरी यहाँ पे एसेट्स है, एसेट जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स हमारे पास क्या है, कैश है, कितना है 2,40,000। इसके बाद बिल्डिंग 1,00,000। इसी तरह फर्नीचर 50,000। गुड्स 1,50,000। जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो हमेशा हम इक्वल रहेंगे। ये तो साइड देखिए कैसे होगा इक्वल। 4,90,000 और 50,000 हो गया 5,40,000। इसी तरह यहां पे भी 4 0 5 5 10 और 14 1 कैरी 2 3 4 एंड 5 5,40,000 दोनों साइड बराबर। इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। जो लास्ट स्टेप में था वही यहाँ पे भी आ गया, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। नाउ वी हैव लर्नड हियर हाउ द अकाउंटिंग इक्वेशन वर्क्स। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, 3 items are there. Main item is assets, liabilities and capital. The assets are always equal to liabilities plus capital. Assets are the properties of the business and liabilities are the obligations to the business that are of two types, insiders and outsiders. जो भी बिजनेस की जाती है, बिजनेस 2 तरह के पैसों से की जाती है, या तो अपने पैसों से की जाती है या तो अपने पैसों के साथ साथ औरों के पैसों से भी की जाती है। जो औरों के पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं बिजनेस में तो उनको बोलते हैं लायबिलिटीज। वो बिजनेस के लिए कर्जा है, वो किसी भी सूरत में बिजनेस को पे करना है। इसी तरह जो अपने पैसे बिजनेस में इस्तेमाल किए जाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल, सॉरी इट इज कैपिटल। ओनर्स इक्विटी उसको बोलते हैं, इनसाइडर्स कैपिटल, इनसाइडर्स इक्विटी। क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो इनसाइडर होता है बिजनेस का, जो उधार देता है बिजनेस को वो आउटसाइडर होता है बिजनेस से, तो उसको वापस पे करने हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ लायबिलिटी एट दैट टाइम। Now, accounting equation again, assets is equal to or always equal to liabilities plus capital. Now, another thing here, liabilities किसके बराबर होता है, assets माइनस करेंगे कैपिटल assets को, तो वहां पे हमें liabilities मिलेगा। इसी तरह कैपिटल किसके बराबर होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, दैट गिव्स अस कैपिटल। एसेट्स को जब माइनस करेंगे कैपिटल दैट गिव्स अस लायबिलिटी। इन द सेम वे जब एसेट्स को माइनस करेंगे लायबिलिटीज वो हमें देता है कैपिटल, उस वक्त लिखता है सी कैपिटल। अब हमने सीखा यहाँ पे अकाउंट इक्वेशन ये कैसे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमें दिखाता है, कैसे सेम होती है बिजनेस में, कैसे डेबिट्स और ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट्स, एसेट्स कैसे बराबर होते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल को। थैंक यू।